and my professional colleagues. A very good afternoon to everyone. I feel privileged to welcome all of you for today's webinar on behalf of the Hisar branch of NIRC of ICI. So thank you everyone for taking time out of your busy schedule to be part of this. First of all, I would like to invite CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar branch of NIRC of ICI, to deliver his welcome address. Thank you, Rajdeep ji. All the respected members of Hisar branch and Sonipat branch, our guest speaker of the day, CA Divam Sharma ji, our past chairman, CA Adhish Jain ji, and ladies and gentlemen, a very good evening to all. It is my immense pleasure to welcome you all on behalf of Hisar branch and Sonipat branch in the Investor Awareness Program, Day 3rd, jointly hosted by Hisar and Sonipat branch. Our today's topic is Indian economy, equity research and small cases. I also welcome our today's speaker, CA Divam Sharma ji. Welcome, sir. Over to you, Rajdeep ji. Thank you, sir. Now I would like to invite CA Saras Jain ji, Chairman Sonipat branch of NIRC of ICI, to introduce our guest speaker of today webinar, CA Divam Sharma ji. थैंक यू राजदीप जी। आप सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है सोनीपत ब्रांच और हिसार ब्रांच के। और आज ये हमारा 3rd डे है और मैं चेयरमैन हिसार ब्रांच का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ये ज्वाइंटली करा। और इट इज़ टफ फॉर अस टू डू दैट 10 days इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, बट ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ हिसार एंड सोनीपत वी कैन डू दिस। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं CA दिवम शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और he is having with over 15 years of experience in managing investments in the stock market and being an MBA from Indian School of Business, Hyderabad. Divam is a member of the Institute of Chartered Accountants of India. Divam has been driving force with Green Portfolio since its inception. He is responsible for customer management, business development and research and has played a pivotal role. Thank you. Over to Rajdeep ji. Thank you, sir. Finally, thanks to CA Divam Sharma ji to carry it forward and enlighten us on today's topic. Hello everyone. Good evening. Thank you so much, Rajdeep ji, Saras ji, Anuj ji, Bharat ji, Dipesh. It has been a pleasure, to come on this webinar. So मेरा एक पुराना connection भी है with Hisar. So I have done my 12th and I started my CA journey from Hisar. So एक काफी connect भी है जो मैं मतलब it's a pleasure to be serving the branch in this webinar. So आज हम बात करने वाले हैं tomorrow's India, leveraging growth through technology के बारे में। आपकी वॉइस इसमें वॉइस का इशू है सर। अब आवाज सही आ रही है? अब आवाज कैसी आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है सर, ठीक है। एक बार आप चलो, थोड़ा बेटर लग रहा है चलो। अभी ठीक है ना? ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टुमारोज इंडिया, लेवरेजिंग ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड दिस इज समथिंग जो आज की डेट का फेवर है। मार्केट्स जो मतलब हमने देखा है कि जैसे पिछले 1 साल में करीब 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। सो एंड जो एक थॉट था, एक मिथ था स्टॉक मार्केट्स के बारे में कि ये एक गैम्बल है, एक स्पेक्यूलेशन है। आई थिंक दैट इज चेंजिंग विद अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड अ लॉट ऑफ अदर
and by participation by a lot of individuals in the markets. So last 1-1.5 साल में काफी youth, काफी investors आगे आए हैं, उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट खोले हैं and they have started investing in markets. So I thought that this topic will be very apt for this kind of a webinar. So today, first of all, we are going to talk about Indian economy post-COVID. Then we are going to talk about growth levers for the economy. क्या-क्या इंडियन इकोनॉमी में क्या-क्या ग्रोथ के लेवर्स हैं. फिर then we are going to talk about influence of capital markets on economic growth. Then we are going to talk about access to capital markets and popular investment vehicles. तो इसमें हम लोग जानेंगे जैसे क्या-क्या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं एक निवेशक के लिए टू पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट्स. इसके बाद हम लोग जानेंगे लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू मीट दीज लिमिटेशंस. सो कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी सारे लिमिटेशंस हैं और टेक्नोलॉजी कैसे उसे सॉल्व कर रही है, इन लिमिटेशंस को सॉल्व कर रही है. फिर इसके बाद हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्मॉल केसेस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा. पोस्ट कोविड, जैसे हम सब बात करते हैं कि पोस्ट कोविड काफी सेक्टर्स, काफी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट हुई है. स्पेशली अगर हम बात करें तो काफी सारे सेक्टर्स अगर आप देखें जैसे होटल, हॉस्पिटैलिटी, लीजर, काफी सारे छोटे व्यापारी डिस्टर्ब हुए हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. एंड देन वी हैड फर्स्ट lockdown, then we had second lockdown, and we still talk about third wave of COVID. So इससे हमारी ग्रोथ काफी ज्यादा हैम्पर हुई है. अब अगर हम आगे देखें तो जैसे इंडिया इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थी बिफोर कोविड, एंड उसमें काफी बड़ा इम्पैक्ट आया. हम लोगों ने देखा कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में गई, काफी सालों बाद फर्स्ट टाइम नेगेटिव में गई. सो ये जो डैमेज हुआ है, इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो नीचे जो एक तबके के लोग हैं, जो उनको काफी इम्पैक्ट हुआ है. जैसे अगर आप डे लेबरर्स देखें, आप सर्विस वर्कर्स देखें, आप डोमेस्टिक हेल्पर्स देखें, तो हमने इन लोगों को नहीं बुलाया घर पे और हम लोग ने इनकी इनकम पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए देखा. तो यहाँ से रोड टू रिकवरी, अगर हम रिकवरी की बात करें, जब मतलब ऐसे टाइप के इकोनॉमी में शॉक्स आते हैं और इससे जब हम रिकवरी करने की बात करते हैं तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए टू ड्राइव बैक दैट ग्रोथ. सो उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है? उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है. गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करे या फिर इन्वेस्टमेंट्स करे, या इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई के तौर पे, एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे इंडिया में आए, या फिर हम एक्सपोर्ट्स करें. क्योंकि अभी काफी ज्यादा इनकम इम्पैक्ट हुई है काफी सारे मेजर पॉपुलेशन की, जो अलग अलग जॉब्स कर रहे थे या लेबर का काम कर रहे थे, तो कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई है इंडिया में. सो कंजम्पशन तो कैन नॉट बी रिवाइव दैट इजिली. सो हमें उसको कोप अप करने के लिए हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को पुश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को पुश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को पुश कर सकते हैं. सो आगे अगर हम if we do strong exports and public investments, that will bridge a lot of household and small business balance sheets also to heal. जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी मल्टीप्लायर आता है. तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करेंगे तो काफी सारे लोगों को इनकम मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एंड उससे हम लोग जो इश्यूज हमने देखे पिछले 1-2 साल में, वो ग्रेजुअली उससे हम हील कर पाएंगे. सो पहले एक अनुमान देखते हैं कि FY22 का GDP forecast क्या है. So ADB, Asian Development Bank, is saying that the GDP forecast of FY22 is 10%. IMF is saying that the GDP forecast is 9.5%. Likewise, Moody 9.3, Goldman 11.1.
सो एक एक मतलब हम लोग जब हम 2020 के क्राइसिस से पहले जा रहे थे तो हम लोग एक ग्रोथ रेट पे थे जो 7% के आसपास थी. नाउ बिकॉज ऑफ द शॉक हम लोग एंटिसिपेट, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये एंटिसिपेट कर रही हैं कि वहां पे पेंट अप डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग आएगी, तो फिर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और लोग स्पेंड करेंगे, और कैपिटल मार्केट्स भी इतना भाग रहे हैं तो स्पेंड करेंगे, तो जीडीपी में ग्रोथ आएगी. सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव अनुमान है जीडीपी ग्रोथ का फॉर द FY22. Now let us understand growth trajectory pre-COVID. So pre-COVID अगर आप देखेंगे तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग we started with so आप देखेंगे 1991 के बाद there has been growth continuously, and हमने 1980s में लास्ट नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी थी. उसके बाद हमने 2020 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी है. अब बीच में ऐसा था कि जब 2020 में जब .com बबल आया या 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया, तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी डीथ्रोन हुई, हम लोग थोड़ा सा कम ग्रो करे. बट लेकिन हमारी उसके बाद पिछले कई सालों से 2009-10 से अगर आप देखेंगे तो हमारी कंसिस्टेंटली काफी अच्छी ग्रोथ रही है. लेकिन 2020 में हमारी ग्रोथ काफी ज्यादा हैम्पर हुई, जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम एकदम से जो ऊपर जा रही थी वो एकदम से नीचे आई. एंड जीडीपी ग्रोथ रेट में तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ उसमें डी ग्रोथ आई. सो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एकदम से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चल रही थी, वो हैम्पर हुई. सो यस, सो हम लोग ग्रोथ लेवर्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्रोथ लेवर्स हैं ग्रोथ को वापस लाने के लिए. सो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा ग्रोथ लेवर है पब्लिक स्पेंडिंग. हमने देखा कि यूएस में एक $1 ट्रिलियन का एक बिल पास हुआ रिसेंटली, जहाँ पे यूएस ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में दोबारा से एक काफी मेजर स्पेंड करने की बात बोली. लाइकवाइज हम इन एक्सपोर्ट्स में एक काफी मेजर शिफ्ट देख रहे हैं, जिसके इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे. बट एक्सपोर्ट्स में एक काफी मेजर शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. इंडिया का एक्सपोर्ट्स टूवर्ड्स ग्लोबल कंट्रीज बढ़ रहा है. चाइना एक मेजर, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. एंड चाइना ग्लोबली काफी सारे प्रोडक्ट्स में काफी एक मेजर शेयर होल्ड करता है. बट विद द चेंज इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स, जहां से हम लोग वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉट ऑफ इनकम and a lot of development of capital markets for that matter. So एक और important aspect है foreign direct investment, जो हमने काफी बढ़ता हुआ देखा है पिछले 1-1.5 सालों में. FDI and FII investments into India has been at all-time highs, and this is a very positive factor that we have seen in the last 2 years. So सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पब्लिक स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर के बारे में. सो हमने यूनियन बजट 2021 में देखा कि गवर्नमेंट जो पहले काफी ज्यादा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करती थी, जैसे किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करती थी या और कई जगह पे डायरेक्ट इनकम देती थी, उसने मूव करके कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ मूव कर दिया अपनी स्पेंडिंग को. Likewise, the total capital expenditure, if you look at the total capital expenditure, it rose 50% to $71.3 billion. काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट आउटले किया गया टुवर्ड्स डिफेंस, रेल रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक वर्क्स, पावर. सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया. हम लोग जानेंगे आगे जाके कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से क्या प्रभाव आएगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ड्राइव्स टू एन इकोनॉमी.
So now let us talk about exports. So India का exports जो है वो एक काफी मेजर रोल प्ले करेगा आगे आने वाली इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर. एंड जैसे अगर आप केमिकल्स की बात करो, चाइना केमिकल्स वर्ल्ड में $1200 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को, एंड इंडिया वर्ल्ड को खाली $90 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करता है. लाइकवाइज अगर आप फार्मा की बात करें, 70% हमारा जो APIs है वो हमारे चाइना से आते हैं. सो हमारा बहुत ज्यादा रिलायंस नॉट ओनली इंडिया जो एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्टिल वी आर गुड इन मैन्युफैक्चरिंग and exports across the world in these sectors which I talk about, but still चाइना का कंपैरिजन इंडिया के मुकाबले कुछ नहीं है. तो जिसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाता है. वो बहुत ही सस्ते में वो सामान दे पाता है वर्ल्ड को, एंड दैट्स व्हाई a lot of countries, a lot of economies rely on China for their consumption. So so अगर हम लोग इंटरनेशनल, अगर आप ये देखें जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब काफी सारी इकोनॉमीज ऐसा हुआ कि सो आप देखें जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब इन सब इकोनॉमीज ने काफी ग्रो किया, एंड वो ऑन द बैक ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रो किया. सो जब भी एक सेटबैक आया, हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट्स एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया इकोनॉमी में, एंड उसने उस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूम कर दिया अगले आने वाले 1, 2, 3 डिकेड्स में. सो काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर इन कंट्रीज ने किया. क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये एक्सपोर्ट कर पाई इतना? क्योंकि इन्होंने इन कंट्रीज ने बीट चाइना, बीट जापान, बीट कोरिया, इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में. उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी कि आप आओ, आप मैन्युफैक्चरिंग करो. सो ये एक काफी मेजर ड्राइवर रहा इकोनॉमी के लिए during these years. So now let us talk about ये एक स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, which is a scheme of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें क्या है कि जो भी आप एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में अगले 5 सालों में इस लाइसेंस को लेने के बाद, आपको गवर्नमेंट उस पे 4 से 6% एक्स्ट्रा देगी फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अंडर दिस स्कीम. सो आपको इस लाइसेंस को लेने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट आपको ये लाइसेंस देती है. कुछ सेक्टर्स में, कुछ चैंपियन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है. जैसे देयर आर अराउंड 24 सेक्टर्स व्हिच गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड. इसमें सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, डिफेंस, पावर इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि जहाँ पे हमारे पास नो हाउ है और जहाँ पे हम ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वहां पे ये स्कीम लाई गई है. एंड इससे क्या होगा कि हम लोग एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा पाएंगे आगे आने वाले समय में. हम लोग चाइना से कम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि चाइना से जो 4 से 6% का मार्जिन हमें एडिशनल क्वेश्चन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट विल मेक अस मोर कॉम्पिटिटिव. लाइकवाइज हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम लोग सप्लाई चेन में वैल्यू चेन में एक लेवल ऊपर जा सकते हैं. हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं. हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके अराउंड जो टर्शियरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप होती है, बीट स्मॉल इंडस्ट्रीज, SMEs, वो भी डेवलप होती है. सो and this time is also helping us. So anti China जो sentiments रहे हैं, हमने देखा है कि UK में एक अलायंस बना जो 5G के अगेंस्ट बनाया गया. Likewise, a lot of economies are anti China. They want to deleverage their imports from China, and they are looking for alternatives. इवन चाइना के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. इसके बारे में हम आगे जानेंगे. चाइना एक ऐसी इकोनॉमी हो गई है जहाँ पे एवरेज एज, मीडियन एज 38-39 इयर्स है, एंड वो एजिंग पॉपुलेशन है. दे आर वेल ऑफ, देयर कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैज गॉन अप. So there are a lot of थिंग्स दैट चाइना इज फेसिंग,
So India is getting a lot of opportunity in terms of exports to the world. And this will not only help us cut down our imports, but will also help us export. So अब जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो एक अगेन एक ग्रोथ लेवर है. सो जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है पोस्ट पैंडेमिक, जैसे हमने देखा कि इंडिया ने बहुत सारा एफडीआई अट्रैक्ट किया, व्हिच वाज द हाईएस्ट दैट इंडिया हैज एवर रिसीव्ड. पूरे वर्ल्ड में हमने देखा कि एफडीआई कोलैप्स हुई 42% से, बट इंडिया में एफडीआई पिछले साल के मुकाबले 13% से इंक्रीज हुई. लाइकवाइज गवर्नमेंट भी काफी एक मेजर रोल प्ले कर रही है एफडीआई को प्रमोट करने में. काफी सारे सेक्टर्स में लिमिट्स बढ़ाई जा रही हैं. काफी सारे सेक्टर्स में लोगों को बोला जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए. पीएलआई स्कीम के थ्रू काफी पार्टिसिपेशन आ रहा है. जैसे अभी मोबाइल्स में पीएलआई पार्टिसिपेशन आया. हमने देखा कि हम चाइना से हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे थे मोबाइल, and we have invited companies like Foxtron, Apple, and a lot of such companies have actually got PLI licenses in India to manufacture mobile phones in India. So उससे ना केवल हम लोग अपना चाइना से इंपोर्ट रिड्यूस कर पाएंगे, बट हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. सो एफडीआई अगर आप देखें तो एक काफी मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो कराने में. सो इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, एंड ये एक काफी बड़ा लेवर है टू पुल द इकोनॉमी एंड मेक इट वन ऑफ द बिगर इकोनॉमीज एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज इन द कमिंग इयर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी बिटवीन चाइना एंड इंडिया. सो चाइना जो 2007 में था, हम वो 2021 में हम इंडिया उस सेम पोजीशन में है. अगर आप देखेंगे 1995 से 2005 तक, 2007 तक चाइना और यूएस की इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल मिनिमल थी. लेकिन 2007 के बाद चाइना ने एकदम से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. एवरीवन नोज कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के लिए क्या किया. So likewise, आप इसका अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे अगर आप देखेंगे 97 में आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर आप देखेंगे यहाँ पे 2008 में आफ्टर सब प्राइम क्राइसिस, चाइना डिड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, जो आप जो ये ट्रैजेक्टरी में भी देख रहे हैं. Right, so अगर आप देखेंगे तो चाइना spent around $200 billion post Asia financial crisis and $758 billion post global financial crisis. So ये एक काफी बड़ा लेवर है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और इसी ग्रोथ लेवर पे हमारी इकोनॉमी भी काम कर रही है. यूएस भी, अगर हम, जैसे मैं बात कर रहा था कि $1 ट्रिलियन का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बिल पास किया है. And this is and GDP creates the largest GDP multiplier comes from infrastructure spending. तो उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सबसे ज्यादा उसमें जीडीपी मल्टीप्लायर आता है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. सो लाइकवाइज अगर हम इसी स्लाइड को कंटिन्यू करें कि सिमिलैरिटीज बिटवीन 2007 चाइना एंड इंडिया, हमने देखा कि पिछले 5 सालों से जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है. मतलब अगर आप देखेंगे तो हम 38 किलोमीटर पर डे की एवरेज स्पीड से हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. एंड ये रोड्स काफी मेजर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में, एंड वो आगे आके वो काफी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो अगले 1, 2, 3 साल में डेवलप होने वाले हैं. और हम लोग काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को, काफी सारे SEZs को हम लोग पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं.
एंड ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को कि आप स्केल कर सकते हो, आप एक जगह मैन्युफैक्चर करो, आप पूरी इंडिया को सप्लाई करो थ्रू थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप पोर्ट्स पे ले जाके एक्सपोर्ट कर दो. सो जैसे हमने देखा कि बाकी कंट्रीज ने किया, तो इंडिया भी वही एग्जैक्टली कर रही है. तो अगर आप देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो एक काफी मेजर प्रोजेक्ट है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2023. Amritsar Jamnagar is again a very big project that is again in the pipeline. Likewise, there are a lot of these projects which are there in the pipeline, and हमने ये देखा है कि एटलीस्ट हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूव हुआ है, and there is a reason for that. So I'm not talking about any particular government, but I'm talking about the reason why this infrastructure spending is very important, and why is this happening. So let us shift focus and try to understand कि चाइना क्या कर रहा है अब. तो चाइना ने 2007 से ग्रोथ करी, वो एक काफी मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया. अब चाइना की पॉपुलेशन 38 के आसपास मीडियन पॉपुलेशन है. इंडिया की मीडियन पॉपुलेशन 29-30 के आसपास है. तो हम एक यंग पॉपुलेशन है. तो चाइना अब आगे जाके क्या करना चाह रहा है? हमने देखा चाइना ने अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस करी अपने एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे उन्होंने फॉर प्रॉफिट प्राइवेट ट्यूटरिंग को बैन किया. लाइकवाइज चाइना काफी बड़े डिसीजंस ले रहा है आजकल. वो क्या डिसीजंस है? सो चाइना आगे जाके अब अपने को एक ग्रोथ ओरिएंटेड, लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर ऑफ सर्विस, मोर ऑफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना चाह रहा है, जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमी को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहता है, कार्बन न्यूट्रल रखना चाहता है, एंड they want to be leaders in tech and innovation like what US did. So US ने मेजर स्पेंडिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर उसने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया चाइना को. फिर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना. चाइना की अब डेमोग्राफिक्स ऐसी है कि लोग एज कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेस कॉस्टली हो गए हैं. चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता. हमने देखा कि कई सारे स्टील प्लांट्स चाइना में, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कट डाउन करी गई, इंपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं चाइना में, एक्सपोर्ट्स कम करे जा रहे हैं. सो एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है. सो अ लॉट ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट इज हैपनिंग इन चाइना in the last few years. and 2018 के बाद चाइना ने खुद का एक 10 साल का जो मॉडल बनाया, उसने खुद को यूएस के तौर पे के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो सर्विस ओरिएंटेड, टेक ओरिएंटेड एक कंट्री बन जाएगा. सो चाइना के जो रीसेंट जो पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि आउटपुट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए. चाइना की स्टील, जो सबसे बड़ी टैंगशान, जो सबसे बड़ी चाइना की स्टील मेकिंग है सिटी है, वो वहां पे आउटपुट के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए. कंट्री एक्सपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज कर रही है, उस पे ड्यूटीज लगा रही है, इंपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज कर रही है. इसी तरीके से फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर को बोला गया कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही बनाएं एंड आप एक्सपोर्ट्स के लिए ना बनाएं. एंड चाइना एक काफी मेजर एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, जिससे हमारे देश के, आप देखेंगे तो हमारे देश के स्टील के स्टॉक्स, हमारे देश के फर्टिलाइजर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज shift, the prices have gone up of a lot of these commodities, of a lot of these products. So there's this shift that is happening. इन्होंने NRDC करके एक कमीशन बनाया, जहाँ पे इन्होंने बोला कि हम 2030 तक कैसे अपना कार्बन एमिशन को पीक पे ले आए और 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए. So चाइना एक ऐसी ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ा है जहाँ पे they are caring more for their population, they are caring more for saving their resources, and they want to shift to a more service oriented economy. So इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, थी, और वहां से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि एक ये स्पॉट है जो चाइना इज वेकेटिंग
and this is a very clear opportunity because anti-China sentiments and a lot of countries want to deleverage. This is a very big opportunity for India to become a manufacturing hub going in the next 1 to 2 decades. So हमारा जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था and PLI का जो पॉलिसी था, that is playing a very important role. गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं 1.97 लाख करोड़ स्पेंड करूंगी इन और ये आउटलेट 13 सेक्टर्स के लिए किया गया है एंड इसमें 24 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके बारे में भी स्कीम्स आएंगी ग्रेजुअली. तो हमने ऑलरेडी देखा मोबाइल में, टेक्सटाइल में, फार्मा में, केमिकल्स में ऑलरेडी PLI के लाइसेंसेस दिए गए and a lot of companies have come forward. Almost every company, अगर आप फार्मा की बात करें तो almost every company, every large company came out with a for applying PLI and हर कंपनी केपेक्स मोड में जा रही है. तो हम जैसे अगर चाइना वर्ल्ड में $1200 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करती है और इंडिया वर्ल्ड में $90 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट करती है और हम चाइना से खाली 10% 120 बिलियन भी अपने पास ले ले तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यहाँ से डबल कर देंगे. तो जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो every good large company is in expansion mode. Everybody is applying for PLI and this is a game changer. We have not seen anything like this. आज की डेट में हम पहले देखते थे कि कस्टम्स ड्यूटी आप लगाओ एप्लीकेशन, आपको साल भर लग जाता था, आपको कस्टम्स ड्यूटी क्लियर नहीं इम्प्लीमेंट होती थी. आज आप फाइल लगाओ, एज सून एज 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी आपकी फाइल क्लियर हो जाती है. So this is the shift that is happening. A lot of emphasis is on Make in India. A lot of emphasis is on improving India rankings. A lot of emphasis is on competing among states. हर state चाहती है कि मैं अपना infrastructure develop करूँ, मैं FDI को लेके आऊँ अपने state में. So this is a very big shift that is happening, which is going to shape India's future in the next 1 decade. So आप सारी मेजर कंपनियों के बारे में बात करें, सबने PLI स्कीम में अप्लाई किया है. Be it Exide, Tata Steel, Foxconn, Tata Chemical, Aurobindo, STL, Samsung, Micromax, Apple, इतनी बड़ी कंपनियों ने इसमें अप्लाई किया है. मोबाइल में तो they have said that they'll manufacture around 11.5 lakh crores worth of mobiles in the next 5 years. So ये in itself इतनी ज़्यादा employment, इतनी ज़्यादा opportunity, business opportunity create करने वाला है इंडिया के लिए कि our economy is definitely going to be growing at a very fast pace in the coming years. So एक और parallel draw करते हैं. Let us understand a parallel between US and India. So जो US 1960 के आसपास था, आज इंडिया उस एज डेमोग्राफिक्स में है. So उस टाइम पे क्या हुआ था? India is one of the youngest population, as we all know. 63% of the population is in the working age group and 54% is below 25 years age. So this is a very big opportunity क्योंकि हम एक young economy है, तो हमारी consumption in ourselves, अगर हम अपनी economy के लिए भी consumption अगर हम provide करा पाए तो हमारी economy यहाँ से कई गुना हो जाएगी. अगर हम basic रोटी कपड़ा मकान and basic amenities अपनी population को भी provide करा पाए तो हमारी economy यहाँ से कई गुना होने का potential रखती है. Likewise, US in 1960s was also a similar kind of a age bracket where 51% of the population was below 25 years age. Today it is completely different. And आप देखेंगे जो major developed economies है, be it Japan, China, US, Europe, European Union, यहाँ पे काफी ज़्यादा aging population है. Germany की median age is around 55. अगर आप और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज देखेंगे तो मीडियन एज इज अराउंड 55 to 60. जापान और ज्यादा है. सो जहाँ पे अगर जापान जैसी कंट्री में अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरिंग, देन हु विल वर्क फॉर द इकोनॉमी? एंड देन व्हाट हैपेंस इज एवरीबॉडी नीड्स मेडिकेशन, एवरीबॉडी नीड्स एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू बी एफिशिएंट एंड एक तो खर्चे बढ़ जाते हैं, दूसरा आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है.
एंड आपका अपस्किल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, तो आपकी पॉपुलेशन को अपस्किल करना भी मुश्किल हो जाता है. So they are at a disadvantage, all these developed economies, and that's what we have seen, that China may be one child policy आई, and they have now obviously changed it, but they have come at a disadvantage. So likewise, अगर आप सिमिलैरिटी देखें अगर इंडिया और यूएस की 1960 में और इंडिया आज की, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का पैटर्न दिखेगा. पॉपुलेशन में 65 प्लस का सिमिलर पैटर्न है. मतलब आप चार्ट देखेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा बिल्कुल. So this is what I'm trying to say is that US, what it was in 1960s, today we are that. And US ने उस टाइम पे बहुत कुछ किया. वो US उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 से निकल के आ रही थी. जो वॉर वेटरन्स हैं उन्होंने मतलब वो बेबी बूमिंग का टाइम था. बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ. पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम सिटीज टू सबर्ब्स. गवर्नमेंट ने हाउसेस बनाने में हेल्प करवाई. And US saw a lot of boom in their economy. So likewise, this young population brings in a lot of opportunity for India. एक इंटरेस्टिंग जेपी मॉर्गन ने एक स्टडी बोली कि इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है, in 2030s India will be one of the largest contributing middle class largest contributing to middle class population in this next one decade. इसका बहुत बड़ा मायना है. So when you talk about next one decade, अगर मिडिल क्लास ग्रो करती है, तो अगर आप किसी अमीर को पैसे दो इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव, तो वो अपनी जेब में रख लेता है. अगर किसी गरीब को या किसी एस्पायरिंग को आप पैसे दो, तो वो उसे स्पेंड करता है, जिससे जीडीपी आता है. लाइकवाइज अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, उसको अगर वो एस्पिरेशनल होता है, एंड दे टेंड टू कंज्यूम. So if a population in middle class is getting created, so a lot of consumption demand will happen, which will be very positive for India in the coming 10 years. जहाँ पे people will be aspiring to buy their own houses, buy their own cars, buy their own electronics, and travel. So ये एस्पिरेशनल क्लास एक बहुत बड़ी कंजम्पशन डिमांड लाएगी इंडिया के लिए, जो बहुत पॉजिटिव होने वाला है इकोनॉमी के लिए. अगर हम कैपिटल मार्केट्स की इंपॉर्टेंस को समझे, तो कैपिटल मार्केट्स में जो पार्टिसिपेशन है, वो उसमें वो बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता है पूरे इकोसिस्टम में, और उससे ट्रांसपेरेंसी आती है, जिससे एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स बनते हैं और बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, जिससे एलोकेशन ऑफ कैपिटल होता है लेंडर से बोरोवर्स तक, जिससे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. सो कैपिटल मार्केट में अगर पार्टिसिपेशन होता है, तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यूएस में एक स्टैट में पढ़ रहा था, 72% ऑफ यूएस इकोनॉमिक डेवलपमेंट is fueled by capital markets in US, be it in the form of equity or debt. So capital markets का participation एक काफी मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी की तरफ. हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा फेयर कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की पार्टिसिपेशन. सो एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. एनएससी की मार्केट कैप, अगर ओवरऑल एनएससी की लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप देखेंगे, तो $3.1 ट्रिलियन है, जबकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की तीनों की कंबाइंड मार्केट कैप इज $6.5 ट्रिलियन. सो एनएससी से, इंडिया में जो एनएससी में लिस्टेड कंपनीज से कई ज्यादा मार्केट कैप यूएस की ये 3 कंपनियों की है. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पोर्टेंट फैक्ट. India की market participation is just 6%, whereas US 55% of the population invest in markets. Population wise देखेंगे अगर, तो हम लोग अगेन इसमें आप देखिए तो population in US versus population exposed to equity through any instrument. So population exposed to equity is quite significant in US, and अगर आप इंडिया को देखें,
तो बहुत ही मियाग्रे है, मतलब बहुत ही छोटा है इंडिया में versus the population, very large population that we have. The population that is exposed to equity is lower single digits. So the potential for participation, the potential for using these capital markets for economic development is quite huge. Likewise, अगर आप यूएस से क्यों, आप बाकियों से कंपेयर करें, आप सिंगापुर से कंपेयर करें, यूके से कंपेयर करें, यूके में, सिंगापुर में 52% पॉपुलेशन मार्केट्स में पार्टिसिपेट करती है, यूके में 33%. Still we have a lot of way to go in terms of capital market participation, and this is increasing. This last 1 year this is increasing, and this will further increase in the coming years. So capital market में जो low participation है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा लो पार्टिसिपेशन है कैपिटल मार्केट्स में. तो एक तो सबसे पहला हम लोग ये हमारे सब मतलब वी हैव कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर अ लॉट ऑफ आवर फैमिलीज स्टिल थिंक दैट इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स इज अ गैम्बल. हम हर्षद मेहता और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और ऐसे स्कैम्स को देख के हम लोग देखते हैं कि मतलब ये स्पेक्यूलेशन है, इसमें कोई इसमें पैसा नहीं बनता, पीपल लूज मनी. बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इफ यू लुक एट BSE for the last 40 years, BSE has given a CAGR return of 16%. So अगर आप कुछ नहीं करते, बस खाली BSE कंपनीज में इन्वेस्ट करते, you would have gained 16% CAGR returns. So हम और देखें आगे तो हेजिटेंस है इन्वेस्ट करने में, बहुत स्टीरियोटाइप है, गैम्बल माना जाता है. बट एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स में. बहुत सारे मिलेनियल्स, यंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही यंग है, तो बहुत सारे मिलेनियल्स आ रहे हैं मार्केट में. We see a lot of participants who are 25 years, 30 years, 20 years who have started to invest. So it's actually very positive. They take various courses from various market participants. They want to learn, they want to understand markets. So a lot of influencers have come on YouTube who actually influence these investors. A lot of technology products have come up to solve a lot of problems of these investors, be it in terms of availability of information, ease of investing, and a lot of other aspects. Likewise, एक काफी एक मेजर एक चीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो है बायसेस. तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे बायसेस होते हैं. सबसे पहला होता है लॉस अवर्जन बायस. सो लोग पैसा ना, मतलब people tend to place more importance on not losing 100 rupees than gaining 100 rupees. So हम लोग ये एक बायस है जिसकी वजह से हम लोग मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अच्छे से. लाइकवाइज कंफर्मेशन बायस, जहाँ पे हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं और हम उसी के बेसिस पे चलते रहते हैं, और अगर हमने कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं भी करी, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सच स्टोरीज वेयर people kept on holding Kingfisher, they kept on holding Unitech for years and in anticipation कि वो कभी ना कभी तो वापस आएगा. So जो उनके थॉट्स हैं वो उसी पे कंफर्मिटी बायस होता है. लाइकवाइज हर्डिंग बायस, हम ये देख रहे हैं आज की डेट में IPO एक हर्ड है जहाँ पे एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन है, where everybody wants to participate in an IPO. And we don't know what are the valuations of Zomato, we don't know what are the valuations of other companies, but we still want to just, there is a FOMO as we call, that is driving investments into this market. So ये एक bias है जो हमें कैपिटल मार्केट्स में नुकसान कराता है, एंड हमें हमारी पार्टिसिपेशन, जब नुकसान करते हैं लोग तो फिर वो बाहर हो जाते हैं मार्केट से. So we have to keep our eyes and ears open while investing. We should try and avoid these biases while investing. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक काफी एक्सप्लोसिव ग्रोथ आया मार्केट्स में over the last 1 year in particular. काफी सारे डीमैट अकाउंट्स खोले गए, more than 1 crore डीमैट अकाउंट खोले गए पिछले 1 साल में.
which is a very, very big positive for Indian economy and investors. So ये ग्रोथ काफी ड्राइव करी हमारे जो मतलब लॉट ऑफ दीज ऑफलाइन ब्रोकर्स, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वर not able to go to their brokers, and a lot of offline brokers also came up with online platforms. So online अब बड़ा easy हो गया आपको डीमैट अकाउंट खोलना, अवेयरनेस बढ़ गई, लोगों के पास समय था, लोगों को इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट मिला टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मार्केट्स ने भी अच्छा किया, तो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट्स में। रेगुलेटरी बेसिस पे सेबी ने क्या किया पिछले कुछ समय में? सो ओवरऑल जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो रिस्क इन द मार्केट, सेबी उसको रेगुलरली कम करने की कोशिश करती है, वो उस पे सेबी काम कर रही है। फिजिकल शेयर्स को सेबी ने हटा दिया। 2018 में फिजिकल शेयर्स का वो रेगुलेशन ऐसा आया कि आप फिजिकली शेयर्स में ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, so everybody had to convert their shares to demat to transfer them. Efforts जो करे गए बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने में करे गए। म्यूचुअल फंड सही है और ऐसे कैंपेन्स आए। हमने ये देखा कि जो फ्रॉड है एक्टिविटीज हैं उसको कम करने की कोशिश करी गई थ्रू इन्वेस्टर अवेयरनेस। हम बहुत सारे एड्स देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है या सोच कर समझ कर निवेश करें। तो ये काफी हेल्प किया पॉपुलराइज इन्वेस्टर अवेयरनेस में इन द लास्ट फ्यू इयर्स। लाइकवाइज सो अगर इसका एक नतीजा देखेंगे तो हम लोग म्यूचुअल फंड में 10 लाख करोड़ पे थे जब 2014 में, एंड आज हम अराउंड 33 लाख करोड़ का AUM इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इन्वेस्टर्स का रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश करी गई थ्रू इंक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट। Regulations लाई गई to increase listing of startups. Lot of high growth startups people are interested to invest in, and they are the future. So lot of companies are going to list in the coming years. अब और काफी सारे लॉज लाए गए एंड इवन नए इनोवेटिव मॉडल जैसे स्पैक की भी कंसिडरेशन है कि स्पैक जैसा मॉडल इंडिया में लाया जाए, जो यूएस में काफी पॉपुलर है, पुराना मॉडल है, बट इंडिया में ऐसे टाइप का ब्लैंक चेक कंपनीज बोलते हैं इसे, जो लाया जाए इंडिया में। सो काफी सारे सेबी ने भी काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया कैपिटल मार्केट्स की डेवलपमेंट में इन द लास्ट फ्यू इयर्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स टुडे। सबसे पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट्स में। सेकंड रियल एस्टेट, देन आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या मैनेज्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू कस्टमाइज्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। सो रियल एस्टेट एक आप ऑलमोस्ट every household does real estate investment almost at some time in his lifetime, and इसमें आप लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की यील्ड 2 से 3% आती है, कमर्शियल में 6, 7, 8% भी आ जाती है। लाइकवाइज आजकल काफी सारे कैपिटल मार्केट्स के थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे REIT आ गया है, जिसके थ्रू आप यूनिट्स ले सकते हैं एक लार्ज रियल एस्टेट का, एंड you get upside in terms of capital appreciation as well as rentals. So ऐसे innovative products आ गए हैं जिसके थ्रू आप capital markets के थ्रू invest कर सकते हैं in these real estate. तो आपको directly पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, या आपको उसे मेंटेन करने का या उसमें डॉक्यूमेंटेशन करने का नीड नहीं है। You can directly invest through a capital market in real estate. So on an average जो रियल एस्टेट का अप्रिसिएशन होता है वो इन्फ्लेशन रेट के बराबर होता है। अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट 6-7% है ऑन एन एवरेज इन अ लॉन्ग टर्म, द थंब रूल सेज दैट इसका रिटर्न would be equal to or lower than the inflation rate. But
कैपिटल मार्केट अगर आप स्टॉक मार्केट्स देखेंगे तो उसका ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन के डबल रेट पे ग्रोथ होती है. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप मतलब सुन के हैरान हो जाएंगे. इंडिया में 49% ऑफ द हाउस होल्ड्स का जो मिडिल क्लास अगर की बात करें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगर मिडिल क्लास के पास 100 रुपए हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसा है. सो 49% ऑफ मिडिल क्लास का वेल्थ इज इन रियल एस्टेट और हाउस. 20% is in car and balance 31% is in cash and stocks. So ultimately fixed assets में आज की डेट में ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इंडिया में जो हाउस मिडिल क्लास लोग हैं उनका 2015 में 53% फिक्स्ड एसेट में एलोकेशन था. आज की डेट में 74.5% फिक्स्ड एसेट में एलोकेशन है, which includes real estate and car, गोल्ड एक्सेट्रा. सो इसका मतलब ये है कि जब आपको एक मिडिल क्लास को अगर पैसे की जरूरत पड़े, सो एज वी ऑल नो दैट रियल एस्टेट इज इलिक्विड, इट इज नॉट दैट इजी टू लिक्विडेट अ रियल एस्टेट. सो आपको जब पैसे की जरूरत पड़े, आप एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दैट यू डोंट गेट लिक्विडिटी व्हेन यू नीड मनी if you are investing only in real estate and 74% of your allocation is in fixed assets. Likewise, हमने एक चीज और जानी कि रियल एस्टेट का रिटर्न has been below the inflation rate or equal to the inflation rate, and if you are not able to beat the inflation rate to our investment, it doesn't make sense to invest. So as a psychology, we have seen that Indian investors have laid more emphasis towards real estate, and which has actually reduced our prospects. एक तो हम लोग उस टाइप का रिटर्न नहीं कमा पाए, हम लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए, हम लोग को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें लोन की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि we have illiquid assets. So this is a very starking fact that any investor should consider. सो इन्वेस्ट अगर हमें गोल्ड में करना है तो गोल्ड में कैसे कर सकते हैं. तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं हम लोग ETFs के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हैव कम अप कि हमें फिजिकली अगर गोल्ड नहीं लेना तो हम गोल्ड नहीं ले सकते हैं, हम गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ले सकते हैं. तो लाइकवाइज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. On an average, gold returns ने अच्छा किया, मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे. So gold returns को अगर आप देखोगे तो गोल्ड पहले अगर हम इस चार्ट को देखें तो पहले गोल्ड इन्फ्लेशन से रिलेट होता था गोल्ड का प्राइस. सो 1970s 1980s तक गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता था. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती थी तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता था, इन्फ्लेशन घटती थी तो गोल्ड का प्राइस घटता था. बट अब गोल्ड का जो कोरिलेशन है दैट इज मोर टुवर्ड्स मनी सप्लाई. कितना मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो डिटरमिन करता है गोल्ड का प्राइस. तो जैसे हमने पिछले 1-2 साल में देखा कि मनी सप्लाई बहुत बढ़ाया गया हर फेडरल बैंक द्वारा, एंड इवन यूएस में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ाया गया, प्रिंटिंग ऑफ मनी हुआ, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए गए. सो गोल्ड का भी प्राइस इसकी वजह से बढ़ा. 7% पर एनम CAGR की रेट पे मनी सप्लाई बढ़ाया गया एंड 8% पर एनम CAGR के रेट पे गोल्ड का प्राइस बढ़ा. सो जो कोरिलेशन है ऑफ गोल्ड प्राइसेस इज मोर टुवर्ड्स मनी सप्लाई टुडे. अगर आने वाले सालों में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा. अगर मनी सप्लाई को कम करा गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई को कम करा गया तो गोल्ड का प्राइस भी घटेगा. So now the correlation is more towards that. So having said that, अगर हमारा इन्फ्लेशन आज की डेट में आने वाले टाइम में एंटिसिपेटेड है कि 7-8% हो एंड गोल्ड अगर हम लोग 8% कमा रहे हैं तो इट इज नॉट
it is only maintaining your purchasing power parity, maintaining your purchasing power, not increasing your purchasing power through investments. Fixed deposit एक बड़ा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल था और कुछ एज ग्रुप्स में है. 4 to 5% रिटर्न्स देता है. 30% we all know how what are the taxation for fixed deposits, and inflation पे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो 6-7% की इन्फ्लेशन है, 4-5% आप कमा रहे हो, उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो it is negative. Your money at the end of 1 year is negative. By the way, very interesting fact, in Germany the interest yield is negative, -1%. तो आप 100 रुपए अगर बैंक में डालते हो तो आपको 1 रुपए बैंक को देना पड़ता है, आपको मिलता नहीं है. So if you're not maintaining your purchasing power, but वहाँ पे inflation नहीं है इतनी. इंडिया में inflation बहुत ज्यादा है. इंडिया में inflation is 7%, 8%, and actual तो और ज्यादा होती है. So plus FD में there could be default risk, which could actually hamper the your payback. So mutual fund inflation से ज्यादा usually return देते हैं. Mutual fund बहुत types के होते हैं. Mutual fund equity, debt, hybrid. Depending on the type of mutual fund, there are around 45 categories of mutual fund. जैसे small cap, mid cap, large cap, liquid fund, money market fund, short term. So lot of categories of mutual fund are there. अगर आप देखेंगे तो inflation से थोड़ा ज्यादा return निकल जाता है on an average, but less and FD से भी ज्यादा return निकल जाता है. सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स इसे मैनेज करते हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट्स की तो आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट करें. इसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि आप 5,000 रुपए से या 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना. और बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है. 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड ऑफर करती है. यू कैन बाय एनी म्यूचुअल फंड यू लाइक. सो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू, या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं. इसी तरीके से एक फॉर स्लाइटली लार्जर इन्वेस्टर्स, जैसे किसी को 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है और उसे एक मैनेज कस्टमाइज सर्विस चाहिए. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मनी को पूल करता है म्यूचुअल फंड, एंड वो सबके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है. बट लेकिन उसमें मेरा गोल, अगर मेरा गोल कुछ और है, किसी और मेरे को इन्वेस्टर का गोल कुछ और है, तो मैं आई एम नॉट एबल टू गेट अ वेरी कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. सो पीएमएस क्या हेल्प करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कस्टमाइज हो जाती है. जैसे आपको 10 साल बाद बेटी की शादी करनी है, 15 साल बाद रिटायरमेंट लेनी है, वॉट एवर योर गोल्स आर एंड वॉट एवर योर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल इज, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आपकी मैनेज करी जाती है. एंड द इन्वेस्टमेंट इज डन इन योर डीमैट अकाउंट. सो म्यूचुअल फंड में आप पैसा म्यूचुअल फंड को देते हो, म्यूचुअल फंड के नाम पे होती है. यहाँ पे आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट होती है, आपके नाम पे डिविडेंड्स आते हैं, आपके नाम पे शेयर क्रेडिट होते हैं. एंड दिस इज अगेन रेगुलेटेड बाय सेबी. इंडिया में 362 पीएमएस फर्म्स हैं, एंड इसमें मिनिमम जो टिकट साइज है इन्वेस्टमेंट्स का वो है 50 लाख. बट पीएमएस के रिटर्न्स are higher than what we have seen as PMS के returns are way higher than mutual funds. If you look at consistent CAGR returns over the last few years. तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या इश्यूज हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? एक तो हम देखते हैं कि जो क्वालिटी रिसर्च है वो हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि इट इज अ फुल टाइम जॉब. इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब, रिसर्च इज अ फुल टाइम जॉब. अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें एक अच्छी, या तो हम फुल टाइम उसे रिसर्च करें, और वी हैव टू बी ऑन इट. वी हैव टू ट्रैक आवर इन्वेस्टमेंट्स. वी हैव टू see whether we are not going wrong. We have to learn from our mistakes. We have to so this is a continuing process. So एक अच्छी क्वालिटी रिसर्च, 6 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं. फॉर देम
India में there are 362 PMSs, there are 1000 odd investment advisors, 500 odd research analysts, 45 odd mutual funds, which is very less as compared to the 6 crore base and the growing base that we have. So professional analyst India में नहीं available, and usually analysts are averse towards managing small capital क्योंकि उसके efforts दोनों जगह same होते हैं और उसको छोटे capital पे जो fees है वो कम बनती है versus a large capital. So technology is solving a lot of these problems. ये आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे. So ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल नहीं होता. कई इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जहाँ पे मेरे नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती या मेरे कंट्रोल में नहीं होती, या मुझे ट्रांसपेरेंसी मुझे पता नहीं चलता कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं कहाँ नहीं हो रही हैं, या मिनिमम कैपिटल बहुत हाई होता है किसी कुछ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का, या एसआईपी करने में असुविधा होती है, मतलब अनफ्रेंडलीनेस होती है. So there are a lot of issues that are there in the markets that investors face while investing in markets. सबसे पहले एक let us share a screening process. So investments भी कई तरीके से की जाती है मार्केट्स में. अगर आप स्टॉक मार्केट्स इन पर्टिकुलर बात करें, so investments कैसे कैसे करी जाती हैं. So there are different style of investing or strategy of investing. Like जैसे मैं momentum, अगर कोई momentum investing करता है, so momentum is कि you are chasing the trend of the market. Then there are value investing, there is growth investing, there are different strategies. कोई can slim investing होती है और कई तरीके की investing strategies होती हैं. So I tend to do we tend to do more of value and growth investing, so I can talk about that because this is our area of expertise. So एक ऐसा share है Balaji Amines where we did investing and we even exited this share, and I just want to talk about कि हमने क्या देखा इस शेयर में. ये पिछले 2 साल में हमें 17 गुना का रिटर्न देके गया, बट लेकिन हमने क्या देखा इस शेयर में जो हमने इसको खरीदा या होल्ड किया और उसमें ऐसे रिटर्न्स देखे. सो ये स्टॉक जो है फार्मा और केमिकल स्पेस में, अमीन्स बनाते हैं ये लोग जो फार्मा और केमिकल स्पेस में जाते हैं. इसमें चाइना का बहुत कंपटीशन है इस स्पेस में, एंड चाइना ने ऑफ लेट, जैसे हमने बात करी, मैन्युफैक्चरिंग अपनी कम कर दी, एक्सपोर्ट्स कम कर दिया अमीन्स के, तो इंडिया की कंपनीज को काफी बेनिफिट हुआ है. इंडिया में 2 मेजर लीडर्स हैं, अल्काइल अमीन्स एंड बालाजी अमीन्स. तो दोनों अमीन्स के अलग अलग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दोनों अपने में लीडर्स हैं. 30 साल पुरानी कंपनी है. अल्काइल से काफी सब्सटैंशियल डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे अवेलेबल थी. मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. वी हैव टॉक्ड टू द मैनेजमेंट मेनी टाइम्स. दे आर वेरी ओपन एंड वेरी like they are very open in communicating whatever they do. And कंपनी का पिछले 10 साल में 15 से 20% का ग्रोथ रेट था. अगर आप देखें तो 30 साल से कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एस्टैब्लिश थी. कंपनी केपेक्स कर रही थी, डायरेक्ट चाइना के सब्स्टिट्यूट बना रही थी. अपसाइड ये भी हुआ कि चाइना एंटी चाइना सेंटिमेंट्स प्ले कर गए. एंड कंपनी की जो ग्रोथ रेट, कंपनी का जो डेट टू इक्विटी था बहुत कम था, like it was 40%, and it was a leader in a lot of products which were direct China competition. So इससे क्या हुआ कि अब they were cheap in terms of valuation. Second, management was good, balance sheet was strong, debt was low, company was doing capex. There were products which had moat that उसको आप बना नहीं सकते इतनी easily. उसके जो products का जो consumption है, chemical और pharma, those sectors were doing good. So a lot of factors were playing well. So this stock did exceedingly well for us. So as an investor, you should look at
such kind of factors कि एक तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गया, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो गया. तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कंपनी का ग्रोथ रेट, फ्यूचर ग्रोथ रेट, कंपनी के जो आज की जो फाइनेंशियल्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड है, फ्यूचर में क्या फाइनेंशियल्स एक्सपेक्टेड है, कंपनी का मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी क्या है, कंपनी में का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन इज गुड, अगर अगर कंपनी में लेवरेज बहुत ज्यादा है और साइकिल टर्न कर जाती है, इकोनॉमिक साइकिल टर्न कर जाती है, तो दे कैन get into losses. So you have to look at a lot of quantitative factors and you have to look at qualitative factors कि कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाती है उसका एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, कंपनी क्या केपेक्स कर रही है, कंपनी अपने ब्रांड के ऊपर कितना स्पेंड कर रही है, कंपनी अपने कस्टमर सर्विस के ऊपर क्या कर रही है. So you are actually becoming an owner of the business. So you have to understand like a businessman while investing. So and you have to continuously track those shares. So आप कंपनी क्वार्टरली फाइलिंग्स करती है अपनी, उसको ट्रैक करो, कंपनी की मैनेजमेंट से बात करो, कंपनी के कंपनी के की कॉन कॉल्स अटेंड करो, एंड लाइकवाइज एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, उनके ट्रेंड्स पढ़ो कि एनुअल रिपोर्ट में पिछले 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स में वो जो बोल रही है क्या वो डिलीवर कर रही है, क्या वो खाली फॉल्स प्रोमिसेस कर रही है और इज इट एक्चुअली डिलीवरिंग दोस थिंग्स. कंपनी का प्रोडक्ट समझो as an expert, what products is the company making, does it have a potential, so ऐसे कई सारे factors आपको देखने होते हैं to do this kind of an investing which is value plus growth kind of an investing. So ये जो हमने इश्यूज के बारे में बात करी कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि इन्वेस्टर को while participating कि एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं मिल पाता, एक अच्छा रिसर्च नहीं मिल पाती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती. तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ओनली टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Else you will not get a good profession. It is very difficult to get a good professional and a good advice on a continuing basis which will ensure your capital protection and will ensure your growth. So हम through technology इसको solve कर सकते हैं, and this is what is coming up. हमने बहुत देखा कि जैसे आजकल एक small case करके एक प्लेटफॉर्म है, IND Money करके एक ऐप है, Scriptbox है, Grow है. So इनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप कोई भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू इट थ्रू अ लॉट ऑफ दीज अवेलेबल ऑप्शंस. तो ये एक काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है और करेगा. जैसे हमारी पार्टिसिपेशन आज ही बहुत कम है, और एक एक्सपर्ट को बनने में बहुत टाइम लगता है. यू हैव टू सी एटलीस्ट 1 to 2 cycles to be an expert of markets is what our belief is. So to get a good expert of markets who knows market cycles, who understands, so you have to leverage technology. So इसी ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की मैं बात करना चाहता हूँ जो काफी एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इन्वेस्टर्स की को अच्छी एक रिसर्च प्रोवाइड कराने में, which is small cases. So this is a basket of stocks or ETFs जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स क्यूरेट करते हैं. So इंडिया में जैसे जो भी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं, they are on the platform. There are 120 professional सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल on the platform who create different products basis different strategies, different investment style, and you can follow these investment professionals and invest in the markets. So अगर हम देखें जैसे आप इन्वेस्टर की इक्विटी में अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना तो कैसे कर सकता है, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकता है. दूसरा, वो खुद अपना डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकता है. तीसरा, वो मैनेज्ड जैसे पीएमएस जो एक कस्टमाइज्ड मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उनके थ्रू उनको पैसा दे सकता है और वो उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं. सो स्मॉल केसेस इसको कैसे सॉल्व करता है, ये आप ETF बेस्ड स्मॉल केसेस खरीद सकते हैं या खुद बना सकते हैं.
अगर आप प्रोफेशनल आप खुद बना के अपने क्लाइंट्स को या खुद यूज कर सकते हैं। आप स्टॉक के स्मॉल केसेस जो हैं प्रोफेशनल्स के वो ले सकते हैं। जैसे आपको डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स चाहिए तो आप डिविडेंड यील्डिंग स्मॉल केसेस का पोर्टफोलियो ले लीजिए। आपको एक किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप सेक्टर्स से स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ले लीजिए। And you keep, and there are rebalances. There is a regular advice that keeps on coming to you from the professional through notifications, and you can just on the click of a button you can execute those advices and changes in the portfolio. So it's a continuing advice. It's not a one-time advice. Likewise, आप मैनेज स्टॉक स्मॉल केसेस भी ले सकते हैं। जैसे पीएमएस में आप मैनेज करवाते हैं वैसे ही आप स्मॉल केसेस के थ्रू भी पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हैं। तो एक ये मॉडर्न तरीका है इन्वेस्ट करने का, इसलिए मैं इसके बारे में एम्फेसिस करना चाह रहा था क्योंकि ये आज की जरूरत है। एंड आई थिंक अवेयरनेस अगर हम बात कर रहे हैं तो और हमें एक अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है टू मैनेज आवर फंड्स। सो दिस इज वन ऑफ द biggest tools for investors to invest in capital markets. So there is a ready-made stock basket of stocks and ETFs. These are long-term investment portfolios जो थीम किसी थीम या सेक्टर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनाई जाती है। ये आपका जो स्मॉल केस है ये एडवाइजरी का एक अकाउंट होता है एंड देन इट गेट्स इंटीग्रेटेड टू योर ब्रोकर अकाउंट। सो आपका जो भी डीमैट अकाउंट है, जो पॉपुलर ब्रोकर्स हैं उसका जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, you can integrate your small case subscription to that broker and you can easily buy and sell through that integration. तो आप पैसा आप ही के डीमैट अकाउंट से जाता है और इन्वेस्टमेंट आप ही के डीमैट अकाउंट में होती है। यू आर जस्ट फॉलोइंग द एडवाइस। सो ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स इसको बनाते हैं। तो ओनली सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंजेंट चेक्स। जब अगर आप पीएमएस का लाइसेंस लेते हैं या आप RIA, RA, AIF म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लेते हैं तो बहुत सारे चेक्स होते हैं। सेबी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे बोलती है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे पीएमएस में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 5 crores। सो आपको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी कंपनी में। you cannot there are a lot of regulations, you have to do a lot of reporting on a monthly basis. PMS have to report to SEBI on a 6 monthly basis. There's a there's a semi-annual reporting that goes. So lot of regulations are around SEBI regulated professional. So investing through a SEBI regulated professional is the most wise thing that investors should do if they are not investing by themselves. So अगर हम देखें तो so ये किसके लिए है, मतलब अगर ऐसे टाइप का ये प्रोडक्ट है ये किसके लिए है? So this is these are, since they are long-term investment vehicles, so they are for new investors as well as existing stock investors. जिसको समझ नहीं है, new investors हैं, they can start with a smaller amount. They are easy to understand. You can easily see the trends of the performance of any professional. You can see the style of investing. You can understand the description of investing. They are very well researched. So professionals manage कर रहे हैं SEBI registered, so you can get some sort of surety in terms of your capital. You can and existing investors इनको एक level पे वो investing करते हैं and then they need more of research, continuous research. They need ready-made portfolios. They need to buy multiple stocks in one click. So this is for new investors as well as existing investors. So benefits क्या है of this technology platform? So you can diversify and lower your risk. आप अगर एक स्टॉक 2 stocks खरीदते हैं और उसमें concentration करते हैं तो your risk increases. So usually you should invest in a staggered manner and you should invest in a diversified portfolio. You should never put all your eggs in one basket. So it helps you diversify क्योंकि minimum 2 या उससे ज़्यादा stocks के portfolio होते हैं यहाँ पे, तो आप diversify कर पाते हैं। Usually हमने देखा है 10 stock, 15 stock, 20 stocks portfolio में होते हैं अलग अलग।
Likewise, it is managed by experts. I have emphasized it many times now. And you stay in total control. So there's no lock-in. अगर आप mutual fund में करते हैं तो there's a lock-in for investors. There might be lock-in for investors. यहाँ पे आपके demat account में investing हो रही है. You might choose not to take that advice of the professional, and the dividends and the stock are coming to your account. So आप कैसे पोर्टफोलियो चुन सकते हैं? जैसे आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने हैं, आपको फ्री सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बेसिस पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, या आपको वॉलेटिलिटी. So this is again मतलब as a investor also, मतलब keeping this aside, as an investor also one should see his one thing is you should not leverage while investing. You should invest उतना ही जितना you can invest for the next few years. You should look at your risk return appetite. Usually जहाँ पे भी आप invest करते हैं आपका risk profiling होता है, तो आपको risk appetite अपना देखना चाहिए, whether my risk appetite is there or not. तो वो कैसे पता चलेगा मुझे? वो volatility से पता चलेगा कि वो stocks में वो कम volatile है, medium volatile है, large high volatile है. मुझे कितना invest करना है, that is again a criteria. Then मेरी investment strategy कैसी है? So ideally what an investor should do is to have a consistent strategy over the years to make money. आप जो भी strategy लो, that strategy should be consistently followed. अगर आप momentum आप trader हो तो आप trade ही करो. अगर आप long term investor हो तो आप long term investing करो. आप ऐसा मत करो कि market गिर गया और आप trader बन जाओ, या मार्केट चल रहा है आप ट्रेडर बन जाओ और आप मतलब स्विच मत करते रहिए अपनी स्ट्रेटजी दैट फ्रीक्वेंट. यू कैन क्रिएट सेपरेट पोर्टफोलियोज, बट आइडियली इफ यू फॉलो अ सिंगल स्ट्रेटजी, या फिर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हो तो आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि मार्केट अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग फेजेस से गुजरता है. एक टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर थी 20th सेंचुरी से पहले, and उसके बाद till 2021 वैल्यू इन्वेस्टिंग जो वॉरेन बफे करते हैं वो उसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, बट नाउ कंसिडरिंग इतनी लिक्विडिटी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा कर रही है. So but as Warren Buffett, he consistently ensured that his strategy remains consistent. So that's where he has made most of his money. So you should consistently, you should be patient with your investments, and you should be consistently following your strategy. So there are 200 plus portfolios that you can choose from. You can see the returns of some of these portfolios. There could be free portfolios, there could be paid portfolios. Like देखिए जैसे मतलब पिछला एक साल बहुत अच्छा रहा, बट कई ऐसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जहाँ पे आपको 160-170% रिटर्न्स भी जनरेट हुए in the last 1 year. So they have obviously outperformed mutual funds, FD, real estate as an instrument. So for a retail investor, technology is solving a lot of problems where a retail investor can invest with a minimum capital. आप 40,000, 50,000, 70,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, and you can earn these kind of returns. So this is an enabler. So और क्या कर सकते हैं आप through small cases? You can find your small case, you can track your performance of your small case. आप filters लगा के check कर सकते हो. आप देख सकते हो क्या CAGR रिटर्न है, इंडेक्स से क्या रिटर्न है. आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है, आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आपको पैसा निकालना है, पार्ट निकालना है, तो आप वो कर सकते हो. आपको SIP करनी है तो आप SIP कर सकते हो. आपको एडवाइस रेगुलर बेसिस पे आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ब्रोकर से. आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे. सो फी बेस्ड पोर्टफोलियो सिंपली वो हैं जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स, क्योंकि देयर इज अ लाइसेंस फीस, देयर इज अ रिसर्च कॉस्ट ऑफ रिसर्च that these professionals have, so they charge a fees for you for providing this research. So these are fee based. There are fee based portfolios as well as there are free portfolios on the platform. So
इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि फीस मतलब में कोई लॉक इन नहीं है, पेपर वर्क आपको सारा कुछ ऑनलाइन है, आपको कुछ ऐसा फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं करना, आपकी स्ट्रैटेजीज बड़ी यूनिक, अलग अलग आपको जिस टाइप की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए सारी टाइप की स्ट्रैटेजीज यू कैन फिगर. सो स्मॉल केस मैनेजर्स वो हैं जो फी बेस्ड स्मॉल केसेस बनाते हैं. So there are a lot of these professionals. So वो अलग अलग पोर्टफोलियोज क्यूरेट करते हैं these small case managers जो अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं और वो रेगुलरली स्टॉक्स को ट्रैक. So हमने ये देखा है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट आप कर देते हो बेसिस मोस्टली हिस्टोरिकल रिटर्न्स, बट हिस्टोरिकल रिटर्न्स डू नॉट गारंटी अ फ्यूचर रिटर्न. सो यू हैव टू लुक एट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रोफेशनल. यू हैव टू या तो आप खुद रिसर्च करो कंसिस्टेंट बेसिस पे, आप उसे ट्रैक करो खुद अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर एक प्रोफेशनल को दे दो जिससे आप रेगुलरली एडवाइस लो. क्योंकि ये एक एफिशिएंट तरीका है जहाँ पे आप अपने बिजनेस पे अपने कोर पे फोकस कर रहे हो एंड जो प्रोफेशनल है उसको वो प्रोफेशनल वाला काम करने दे रहे हो, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर श्योर. आप 100 रुपए मैनेज कर रहे हो कि 100 करोड़ मैनेज कर रहे हो, इट्स आई थिंक you have to spend a lot of time in doing research and it has to be a continuing process. So these experts curate these portfolios. They have vast experience of market. You can see their performance track, you can see their strategy, and whatever you like you can as a tool use them. So there are more than 90% of the brokers they cover. अगर आपका IIFL, Zerodha, Kotak, Axis कहीं पे भी अकाउंट है, you can quickly integrate your account with this small case and you can start following advice. So एक ये ऐसा so simple है इन्वेस्ट करना भी. You can simply go fill in your basic details, you can fill in your broker credentials and वो broker से connect हो जाता है. Then आप सीधा अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराते हो, आप केवाईसी की डिटेल, पैन, आधार डिटेल प्रोवाइड कराते हो, आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हो कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसी है, तो वो उसके हिसाब से भी आपको सजेशन देता है कि आपकी मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, उसके हिसाब से भी आपको सजेशन देता है. देन यू कैन चूज योर सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो इट इज वेरी सिंपल टू इन्वेस्ट थ्रू दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक I have covered all the aspects which I wanted to talk about in this session, and would be happy to answer any of the questions that you all have. राजदीप जी, किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो देखिए एक बार. बोलो. हेलो. सर आवाज आ रही? दिवम जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है, मगर लगता नहीं पर ये प्लेटफॉर्म सही है स्पॉन्सर के लिए. प्लीज स्पेसिफाई सम गुड ऑप्शंस वी कैन गो फॉर बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो विदाउट मच रिसर्च. सर मैं वही बोल रहा था, जैसे आपको you should explore various technology based platforms जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स को फॉलो करो. अगर आप खुद कर सकते हो, आपकी खुद की एक्सपर्टीज है तो नथिंग लाइक इट. अगर आप खुद नहीं कर सकते और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, सो आप एक प्रोफेशनल को फॉलो करो. So through technology you can get a good advice and you have to look at आपको ये देखना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होना चाहिए, उसका ट्रैक अच्छा होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी आपको आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच करनी चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग होनी चाहिए जो उससे वो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे मैच करना चाहिए आपका रिस्क प्रोफाइल. तो जहाँ पे ये एस्पेक्ट्स हैं आप यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन कैपिटल मार्केट्स. एनी अदर मेंबर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो साथ ही है मेरे सुबह से हैंड रेज कर सकते हैं. सर कंक्लूड करें. 2 मिनट वेट करते हैं, राजदीप जी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हो तो. Hi Devam, Nitin here. Hi Nitin, how are you? First of all, thanks. Yeah, it was very insightful, very knowledgeable. I think
जो डीप में आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छा था। तो आई थिंक मोर ऑफ आई विल से एडवाइस फ्रॉम यू, आई विल लाइक टू टेक ऑन वन थिंग। आई थिंक हमने बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो चाहे कुछ हो, जस्ट एक चीज पूछना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट आज के टाइम में कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा और मे बी प्री कोविड एरा ऑल्सो, what they are targeting is one of the safest investment or the safest thing of the people in our country. Maybe if we take example of any RBI dividend received or the consolidation of PSUs and now the disinvestment of LIC and other PSUs. तो ये आपको मतलब just want to know your thoughts कि आपको नहीं लगता ये kind of a double risk है? एक तरफ मैं अपना जितना भी safest haven है जो मेरा, मैं उसको ठीक है, from an expenditure perspective, government doesn't have the money, they need to have avenues to invest, so they are disinvesting all this. But to be honest, in a long term, do you think कि ये चीज manageable होगी नहीं होगी? तो क्योंकि बड़ा रिस्क लगता है इन चीजों में, to be honest. So just want to like your opinion on this. तो एक ये थॉट प्रोसेस है कि गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। सो गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो बिजनेस रन करे, और हमने काफी कंपनीज में, काफी पीएसयूज में मतलब आप देखो कई सारी पीएसयूज, ऑलमोस्ट ऑल द पीएसयूज, दे हैव नॉट मेड मनी फॉर इन्वेस्टर्स ओवर द लास्ट डिकेड्स। सो काफी सारी पीएसयूज 1990s में निफ्टी में आती थी, अब वो सब निफ्टी से ग्रेजुअली वाइप आउट होती जा रही है। सो they and also a lot of other aspects, जैसे जहाँ पे भी क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी प्रेरोगेटिव में आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को भी रन करने के लिए पीएसयूज की बैकिंग लेती है। सो पीएसयूज आर नॉट प्रॉफिटेबल एज सच एंड गवर्नमेंट इज नॉट दैट एफिशिएंट टू रन बिजनेसेस। तो हमने देखा जहाँ पे वी हैव सच कंपनीज व्हिच हैव ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, huge capital, but and they can be liquidated or the loss making PSUs can be taken off. So उसमें क्या होगा कि that money can be used for government to invest in new age infrastructure, in new age companies, या आप स्टार्टअप कंपनीज में एज अ वेंचर इक्विटी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई जहाँ पे वो स्टार्टअप्स में दे आर इन्वेस्टिंग एज वेंचर इक्विटी। Likewise, so one is you are selling the non-profitable or loss-making ventures, and that those ventures have huge potential in themselves where they get privatized and they create a lot of impact on the economy. Not only they can create more employment, they can create more manufacturing, more of exports, lot of things. So it is all in all, it is very positive. We जैसे आप shipping corporation of आप BPCL देखो, it's petrol pumps, either they have to be revamped going forward or they have to be अब जैसे जिस तरीके से EV आ रहा है, so there's a huge potential there. These petrol pumps have lot of land. Government is not selling them for cheap. They're selling them at market prices. But ये अगर इसमें कोई private player आ गया, they can revamp it. They can open hotels in these petrol pumps. They can open EV charging points. Things are evolving a lot, and you need more efficient players to run these businesses. Government is not in the business of running businesses. Thanks Devam yaar. I think good. I completely echo with your point. Just want to thought कि हाँ ठीक है, बाकी लोगों का perspective भी यही है क्या कि I think it's better to invest rather than keep all those money aside. Especially if I take the example of LIC, although it's one of the safe investment, but if I see the spare money LIC is having with them and we are not investing somewhere, so again it's maybe it's time to de-invest that part and try to get some out of it. So let's see what happens in the future, but thanks. Thanks. राजीव जी, Any other question? वीके जी का क्वेश्चन है, राजीव विकास जी का, हम लोग स्टडी कैसे करें स्क्रिप्ट को?
सर मैंने स्क्रिप्ट स्टडी करने के लिए मैंने एक स्लाइड मैंने बात करी थी, आपको फंडामेंटल एज वेल एज पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं, आपको वैल्यूएशंस देखनी होती हैं, आपको क्राइटेरियाज फिक्स करने होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, आप स्क्रीनर होता है, आप स्क्रीन कर सकते हैं कि मेरे ये क्राइटेरियाज हैं कि मिनिमम डेट इक्विटी इस टाइप का होना चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन इतने होने चाहिए। सो उसके बेसिस पे आप स्क्रीन करते हैं, देन आप जो कंपनीज आपको समझ में आती है उसमें आप डीप डाइव करते हैं, जैसे आप उनकी एनुअल रिपोर्ट करते हैं, उनकी मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं, आप उसके बिजनेस का एनालिसिस करते हैं कि वो बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। सो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग करते हैं मार्केट। सो I think it's a continuing learning process for you to learn। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनल की रिसर्च को आप ले लें और उससे स्टार्ट करें, वो उसने क्या रिसर्च करी है, उसने क्या 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 पॉइंट्स को कवर किया है। फिर आप अपने तरीके से सोचें कि यार ये इनका इन्वेस्ट करने का तरीका या उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं कि कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं बिजनेस के लिए। वैल्यूएशंस को देखिए कि किस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है शेयर और किस वैल्यूएशन पे क्या वैल्यूएशन उसकी होनी चाहिए। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जिसको आपको नजर में रखना पड़ता है फॉर इन्वेस्टिंग। एंड देन इट इज अ कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज, यू हैव टू continuously track your company's performance, you have to continuously track कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. A special thanks to Divam Sharma ji for sharing his knowledge on today's webinar. Today's webinar was very interactive and very knowledgeable for us, and value addition and worth addition. Finally, I would like to invite CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar Branch, for formal vote of thanks. थैंक यू राजदीप जी। सबसे पहले मैं आज के स्पीकर हमारे दिवम शर्मा जी का, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और फिलहाल जो मार्केट की जैसे डेली हाई बना रहे हैं नए, तो उसमें आपका भी मतलब टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है, और आपने टाइम दिया हमको और मेंबर्स को एनलाइटन किया, और जो भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया उन सबका धन्यवाद आज कि अपने बिजी शेड्यूल में से ब्रांच को टाइम दिया। और जो किसी मेंबर की कोई क्वेरी है अगर, तो दिवम शर्मा जी ये लोकल मेंबर ही हैं, वो हिसार से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मेल आईडी भी है, उनका नंबर भी आप ले सकते हैं मेरे से, किसी से भी, किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर से। और आप कोई भी क्वेरी हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी स्टॉक की स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू दिवम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच भरत जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपेश जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू विकास जी, प्रदीप जैन जी, थैंक यू ऑल द मेंबर्स।